वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का जय रंगम में स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं श्रीनिवास और we have come to this panel discussion about theater in education and its implementation in Indian education system, especially with national education policy coming into existence. Theater in education is not fairly a new concept. It has been there. In fact, if you Google it, you'd realize somewhere in 1965 this was started as a concept in Britain, which was also later implemented as early as 1988 in Binational School of Drama itself with Sanskar Rangtoli, which eventually took the form of theatre in education. So it's not fairly new, but even now, when you talk about this, people would think, okay, ye kya hai? Is this something new? So we have four panelists with us who have been working in this field, in this domain, for quite a number of years, for long years. And I thought there's no better way than actually asking them and talking to them about their experience. We have with us Mr. Vijay Kumar Singh, who is currently the camp director of National School of Drama, Theatre and Education Wing, Tripura, and teaching theatre in education in the one-year course. Vijayji has been a student of Bharatendu Nat Academy. He has done his diploma in dramatic art from BNA, and he was awarded the Mrinal Sharma Smriti Chinna for Best Student by BNA. And he also received the honor of fellowship in the field of theatre on acting in one-man show granted by the HRT Department of Culture Ministry, Government of India. We welcome you, sir. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar. We also have with us Ms. Asha Kothari Chaudhary, who is the professor at the Department of English, Guwahati University, and specializes in drama and theatre studies, particularly post-colonial Indian theatre, film, and media industry. Her PhD was on the American dramatist Edward Albee, and among her publications are Mahesh Dattani and the Ideas of Stage, selections from the drama theory. And she is currently working on a book on Indian theatre and is also heading a translation project of the collected works of Sri Arun Sharma, the eminent Assamese dramatist. We welcome you, ma'am. Thank you. Good to be here. We have with us Ms. Samta Shikhar. She is currently the head of Theatre Department of Head Start Educational Academy, and she is a member of the International Forum of the Small Size Network and a member of Assemblage India. She has been granted the Prince Claus Travel Grant to share her work on a play she made in a local BMTC bus of Bangalore in the South Africa Assemblage Festival in 2017. And she's working on a new play for the teenagers and above in collaboration with Headstart School and Katkata Puppet, New Delhi. We welcome you, Samta ma'am. Thank you. Thank you for having me. Thank you. And we also have Abhishek Goswami ji, who is a postgraduate diploma in dramatics art from the University of Rajasthan. He has been working in the domain of theatre and drama in education for the last 20 years, which includes his work with and for children in theatre in education of National School of Drama from 1998 to 2006. He is now working for teachers' professional development in the domain of theatre in education and drama in education as a senior resource person in Azim Premji Foundation. We welcome you, sir. So we have gone through national education policy panelist. One of the important aspects of the policy is its focus on developing and nurturing art integrated education by the extension of co-curricular learning.
Here, automatically by default, theater also takes place the moment we talk about art integrated education. There are different aspects of it. The policy paves, it talks about hiring of artists and craft persons, especially from the local communities as guest faculty to promote music, art, languages, etc. And they also talk about a provision in the policy is to have an artist in residence in schools or school complexes to expose students to art and creativity. All this suddenly in 2020, how does it seem to you? How does it look to you who have been working for so many years? How has your journey been till now? How was the experience? And has it anywhere changed in the recent times? Uh, Probably we could start with Vijay sir. यस, शुरू करने से पहले आपने काफ़ी कुछ थिएटर एजुकेशन के बारे में बता दिया कि 1965 इंग्लैंड में शुरू हुआ और 98 में इंडिया में संस्कार रंगचोली, एंड एक चीज़ मिस कर दी उसमें कि 2012 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 1 ईयर कोर्स, यानी कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कहते हैं एकेडमिक्स का जो एरिया है, क्योंकि वो रेपेटरी कंपनी थी 98 में, तो तब से उसका काम काफ़ी सालों तक डेवलप हुआ बच्चों के साथ, स्कूल के साथ और आर्टिस्ट के साथ। लेकिन जो एक पढ़ाई होती है, जो एक ट्रेनिंग होती है इस पेडागोजी को लेकर, जो इसकी मेथडोलॉजी है थिएटर एजुकेशन की, वो 12 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने त्रिपुरा में शुरू किया 1 ईयर कोर्स। और इसमें वर्ल्ड के सारी तरह की प्रैक्टिसेस, चाहे वो ड्रामा एजुकेशन की हो, थिएटर एजुकेशन की हो, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस की हो, जिस तरीके से जितनी भी पेडागोजी और मेथडोलॉजी यूज की जाती है पूरी दुनिया में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, चाहे वो हमारा नाट्यशास्त्र हो या जो प्राचीन में जो फोक को कैसे, जैसे शांता गांधीवादी जी ने यूज किया था, तो इस तरह की जितनी भी इंडियन प्रैक्टिसेस प्लस वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस, इसको एक जगह लाने का काम यहाँ किया गया 1 ईयर कोर्स में। ट्रेनिंग प्रॉपर देने का काम इसमें शुरू किया गया। और इसमें जो हमारा रोल रहा है वो, तो पहले तो हम एज ए आर्टिस्ट रहे हैं, जो हमारे अभिषेक जी भी हमारे साथी रहे हैं, तो हम लोग रेपेटरी कंपनी में एज ए एक्टर टीचर के तौर पे काम करते रहे हैं, परफॉर्मेंस एंड वर्कशॉप्स में भी और बच्चों के साथ प्ले मेकिंग में भी। तो इस तरह के जो बहुत सारे काम के आइडियाज रहे हैं डायरेक्ट बच्चों के साथ काम करने के। लेकिन मेरा जो है इसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट हुआ 12 में, जब ये इंस्टीट्यूट बना तो प्रॉपर स्टडी की और ट्रेनिंग की और प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेनिंग हो और पूरे इंडिया से कई लोग उसके साथ जुड़े। तो हम लोगों ने जो हमारी जो आप एनपीई की बात कर रहे हैं, या हमारी जो पहले जो लड़ाई थी वो एनपीई आने से पहले, वो ये थी कि सिस्टम को, इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाना और बताना कि ये यूजफुल है, गवर्नमेंट को समझाना। या हम तो गवर्नमेंट में है ही, लेकिन गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट के लोग नहीं समझते हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि जैसे त्रिपुरा में भी है, तो त्रिपुरा एजुकेशन सिस्टम इसको समझता ही नहीं है। बाहर के लोग आके बताते हैं, अरे आपके यहाँ तो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, आप क्यों नहीं उसको यूज करते अपने काम में? तो दे इग्नोर दो, क्योंकि उसके जो सेक्रेटरी लोग हैं या जो लोग हैं वो दूसरी दुनिया में है। तो इस तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी नहीं समझ है और बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी लोगों के साथ नहीं समझ है इसकी। तो अब ये लड़ाई खत्म हो गई है। अब ये क्योंकि पॉलिसी में आ गया कि जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को डेवलपमेंट ऐसे हो और क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी उनकी इम्प्रूव हो और पढ़ाई में थिएटर का, ड्रामा का ये रोल होना चाहिए, ये जो हम टीचर को इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए, ये जो बातें हम अब पहले करते थे, अब वो पॉलिसी में आ गई। तो पॉलिसी में आने का एक फायदा तो हुआ थिएटर को बहुत जबरदस्त। मैं इस जर्नी को जो देख रहा हूँ वो कि थिएटर को एक सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया, मतलब रिकमेंडेशंस मिल गई हैं बराबर और सब्जेक्ट के साथ जो आर्ट फॉर्म है। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक पॉलिसी लेवल पे आने से ये फायदा है कि अब हमें इसकी लड़ाई नहीं करनी है, वो अब उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारे पास अब आएंगे, हमें अब उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें इस बार इस एनपीई से मिला है। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं इस एनपीई से, लेकिन इसके साथ डर भी है बहुत सारी चीजों का।
तो इसमें डर भी है। डर इसका ये है कि ये अभी जैसे एनसीएफ भी बन रहा है, एनसीएफ 2021 आने के बाद ही कला का क्या रूप ये लोगों ने एक्सेप्ट किया है और एक्सप्लेन किया है एनपी को लेकर के, ये अभी आएगा। तो उसमें जैसे हमें अभी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, बाद में भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसको, बस कि 9th अभी जो हमारे जो पवन सुधीर जी हैं, जो हेड हैं आर्ट एजुकेशन एंड एनसीईआरटी की, तो उनकी एक हमारे यहाँ क्लासेस हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि 9th से 12th तक परफॉर्मिंग आर्ट के 2 टीचर रखे जाएंगे, और इसमें बाकी के नीचे की जो क्लासेस होंगी उसमें इंटीग्रेशन होगा आर्ट का टीचर के साथ। और जो आप बता रहे हैं कि और भी आर्टिस्ट एंड जो लोकल जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी कैसे इसमें शामिल किया जाएगा प्रैक्टिसेस में, तो वो तो होगा वो। लेकिन उनकी ये कहना था कि अब थिएटर एक सब्जेक्ट के रूप में इग्नोर नहीं किया जा सकता, अब उसको एक रिस्पेक्ट मिलेगी। और इसमें एक चीज और भी है कि चाहे वो क्लास 3 जो नर्सरी प्री नर्सरी का जो टीचर होगा या 12th का टीचर होगा, उनकी तनख्वाहें एक जैसी होंगी, उनकी सैलरी कोई चेंज नहीं होगी। तो ये रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। छोटे बच्चों का काम कर रहे हैं तो बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है, बड़े वालों का ज्यादा मेहनत होती है तो उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। तो लोग अब पेडागोजी के ऊपर ज्यादा ध्यान आएगा, लोगों का सीखने सिखाने के ऊपर ज्यादा ध्यान आएगा। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू विजय जी, दिस इज क्वाइट अ रेवोल्यूशन। और जब आप ये जो कहा है कि गवर्नमेंट में रहकर भी जब गवर्नमेंट वालों वो नहीं सुनते अभी तक, जब तक पॉलिसी में आए तब तक एक तरीके से दरकिनार किया जाता था, अब वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब ये गवर्नमेंट है, then sometimes if we talk about like yours is a private school, and firstly, what has your journey been all this while, and the implementation of NEP, has it impacted in any way to you? Yeah, it's kind of tricky for me to comment on NEP because, first of all, I'm not really a policy person, and I just look at myself as a theatre practitioner who's coming in to give the art form to the children. And I started my journey with that in a private school like Head Start, and before that I was working in some schools in Delhi. And to be very honest, initially when I was working in schools in Delhi, I was very sure that I worked almost in 4 or 5 schools and on small projects on and off, and I realized that oh no, you cannot do theatre in schools. It's just not possible. They just want annual functions, and they want now it's Diwali, now it's Holi, just put up a skit. And this word skit, what does it mean? And my whole idea of doing theatre was not really to put up shows, but was more to reach out to a lot of children with the art form. And this has really come from my own personal life, where I don't think like theatre really brought in the best out of me. And I was pretty much an average student and the backbencher. Nobody's seeing me, nobody, and you're just in that 50 children mein se aap ek hain, and you're not the best to be picked up for a production, But but theatre is not just plays and doing a production, and how it is really an amazing tool to get the best out of you. So that was my more aim to do. In a school where I could reach out to all those students and bring the best out of each one, out of my own personal experience with the theatre. So right. I really come from a very personal space to give this art form to children. But when I started working in schools and I saw they were really looking at the best children and the 200 children on stage, I realized that oh my God, this is definitely not the work I want to do. And I'm not this kind of a theatre practitioner. And so I really never got a job in big cities like Bombay. And, obviously they would just look at me and say, what are you talking? And so एक school में Delhi में एक ऐसा हुआ था कि मैंने श्रीराम सेंटर से अभी I had just passed out and I was a refugee actor, and मैं जाके एक school के साथ एक play बना रही थी उनके annual function के लिए. And I just picked up the children who were really not according to whatever the cream or the best. And I picked up the other children who I felt needed an opportunity. And I really worked very hard with them to bring them at a point where
they could do it. And I was very happy myself that it happened. And theater is such a powerful medium to do that. And it was hilarious because the lady told me, I think, you're not a theater person and this is what you have made and this is not working. Their voice is not loud, but she didn't see the journey that they have made. And so what I did was I immediately picked up the Dream children who were loud and who were like all energetic, and I casted the same scene with those children. And of course, what they performed was far beyond her imagination, and she couldn't believe I did the job. Like I was the same person. And she said, yes, this is what I want. And I said, well, thank you very much. This is not what I want. And I want to leave the job. And that's when I decided that I will never enter a school space, because schools are not looking at theater as an art form, a medium for creation, to reach out, to explore your creative side, which the TIE beautifully does at NSD, which I've worked with Abhishek, and I saw that सारे बच्चे हैं. There was really, जिन्होंने apply किया, all 30 are a part of the game. But here there is a selection policy, and I wasn't very happy. And I realized that probably I was not meant to work in any school, and theater cannot happen in school and all of that. Till I met Head Start, and Head Start again, I entered Head Start at this time of December, which is the annual function month in schools. And I just needed a job, and it was a very small school of only 30 children. So I said, okay, I'll take all 30 because Abhishek da ke साथ तो मैंने बहुत 30 बच्चों के साथ हम TI में करते थे. So I was very confident कि हाँ 30 बच्चों के साथ I will pull up a play, and I had a very typical sun, moon, mountain script. And I put it up, and they loved it, and the parents loved it, and I got the job. And then my director of my school said, "You don't look very happy." And I said, "Yes, because this is not what I want to do." And then he said, "What do you want to do?" And I said, "I want to try to experiment some kind of ideas that come from the children. And I don't want to come with a script. I want to come with something that comes from them and their reality, and see if we can lead to a creation." So he said, "Okay, and you want to make a play like that?" I said, "I don't know. Play banega, nahi banega, but I want to do a process with them, a theater process." And he said, "Go for it." And I picked up only around 8 to 9 children. And this was a school that really gave me the space to experiment and try theater in its purest form for a process. We worked for 6 months, and we came up with a play called Travel, which was made by the children. It was their idea. What are the things in life that travel, and how they could embody it in their body and conceptualize it into a story and perform. And when that work happened, I realized this is what I want to do. It comes from them and it's made by them. And I have just facilitated it, and how profound it can be when children say a thought travels, and how they can show me how thought travels through their body, and use theater medium to show me that. It was very, very exciting for me. It was exciting for the parents and the school. And then there's been no looking back. And I worked in the school for 13 years, and I got in more artists. A lot of artists came from different art forms, and a lot of artists came to watch this and said, "We want to work with this school. We want to work." So it was really a space that opened up for artists to come in. Now we have so many artists who keep coming and sharing their art form. And the school is being really flexible and kind to understand the medium's purity and give us a space to experiment, whether we want to work with 30 children, 5 children, 10 children. I mean, humne kafi nakhre kiye as theatre makers, and they have really helped us and pushed us to go for it, which has led me to understand this work better and now made it a pedagogical work for me. So now I feel from a theatre practitioner, I've become a theatre pedagogue. And I think the school helped me for making this collaboration happen between me and them. And in Bangalore, I would say it's very exciting. A lot of schools are very open and are really reaching out to children through theater. So there's not much of a struggle that we are feeling on that. Of course, as Asha said rightly, in an organized system, my director says, Sapna, it's a school, it's not a theater organization. They have exams and they have sports day and annual days. So it's been a bit of a negotiation, but a beautiful one, because I have also understood as a practitioner that theater is only one part of their lives, but it's a very strong part, and it's I'm happy we have that space. Yeah. So that's what's been my journey in a nutshell. And now we're a team of 5 people. Yeah.
5 artists actually. Through your journey that you spoke about, what I could see is, the understanding of theater in education, how it kind of changed gradually over a period of time, from theater being just a platform to just showcase your skill sets in terms of your acting skills and things like that, to moving into how the regular subjects not just remaining theoretical anymore, and kind of getting ingrained into them. And I think that's what you have been kind of striving towards throughout. Yes, you have rightly decided, because there is a lot of connection with the academics, with the sports, because I do go and see sports functions and see how my child as an actor is in the sports, how my child and I've sat in the classroom to see how he is in his studies, and then see how he is in the theater. And there is a very strong collaboration. It's a pedagogical tool and it's a part of a curriculum of our school. It's not just annual shows, and we've removed the word annual shows. So we just say theater productions when we are ready. If we are not ready, we don't do it. If our children are not interested to share, we don't share it. But it is an experience that they have to go through, which kind of helps them to discover themselves. And that's pretty much where we are. I'm very thankful to this school to give me that space for such a long time. Yeah, to do this. And that's where. So, thank you. This was like great insight, and a much differentiation also. That is, that one can see in terms of just doing theater in school versus having theater as a part of your education itself. Which makes me come to Abhishek sir. This is something that you have been kind of working towards for a long time, not just with the children, now with the teachers also. In fact, you're making the teachers as dramatists, can we call, who and what's the whole idea behind it, and how has your journey been? तो मैं अपनी बात में बहुत सारी बातों को मैं कोशिश करता हूँ कि उसके सिरे जोड़ के आपके सामने रखूं, क्योंकि ये सवाल आपने टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा पूछा है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ बात, और फिर बाद में मैं पॉलिसी वाला जो एंगल है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, उसको भी लाने की कोशिश करूंगा, और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको जोड़ने की कोशिश भी मैं करूंगा। तो फिलहाल पिछले 10 साल से जो काम हम टीचर्स के साथ कर रहे हैं, उनमें कुछ सर्टन अजम्पशंस हैं जिसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी होगी। एक तो ये कि वो थिएटर टीचर्स नहीं है, उन्हें हम कोट एंड कोट जो लिटरल थिएटर नहीं सिखा रहे हैं। उन्हें ये नहीं सिखा रहे हैं कि वो बच्चों को थिएटर कैसे सिखाएं, थिएटर के एलिमेंट्स कैसे सिखाएं, और बाय प्रोडक्ट थिएटर से जो बच्चों के डेवलपमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, वो नहीं सिखा रहे हैं। हम जिन टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, जब मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन किया था तो एक टीआई कंपनी का एक एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ काम करने का, लेकिन वहां से काम करने के बाद जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं जो टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट में डेडिकेटेडली काम कर रही है, उसका आइडिया ये है कि वो ये चाहती है संस्था कि अगर हमारे टीचर्स बेहतर होंगे तो बच्चों की लर्निंग बेहतर होगी, बच्चों की लर्निंग बेहतर होगी तो फ्यूचर सिटीजनरी बेहतर होगी, फ्यूचर सिटीजनरी बेहतर होगी तो ये समाज बेहतर होगा, और एक ऐसा समाज होगा जो न्याय संगत होगा, जो समतामूलक होगा, जो विविधता के प्रति सरोकार रखने वाला होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जिन टीचर्स के साथ हम काम कर रहे थे वो टीचर्स थिएटर टीचर्स नहीं थे, वो अपने एक रेगुलर टीचर्स हैं जो और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो और सब्जेक्ट्स जब पढ़ाते हैं तो उन सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कुछ भाषा पढ़ाते हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, कुछ गणित पढ़ाते हैं, कुछ ईवीएस पढ़ाते हैं, कुछ अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जो तमाम हमारे जो एलिमेंट्री स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स वो टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा चुनौती का काम हमारे साथ ये था कि
हम उन टीचर्स के साथ जब काम करेंगे तो हम क्या काम करेंगे थिएटर का? उन्हें तो ईवीएस पढ़ाना है, उन्हें तो भाषा पढ़ाना है, उन्हें तो इंग्लिश पढ़ाना है, उन्हें तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती का काम जो था कि हम उन्हें क्या थिएटर पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना जरूरी हमको लगा। तो उस कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें लगा कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि पूरा सिस्टम क्या है, ये एजुकेशन सिस्टम क्या है, और ये किन प्रिंसिपल्स से डिराइव होता है और किन प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करता है, और अगर नहीं करता है तो इन्हें किन प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करना चाहिए और किन प्रिंसिपल्स के तहत इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स डिजाइन होने चाहिए। तो हमें ये समझ में आया उसमें कि अगर हम टीचर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो पहले हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा 2005 का, और जो अर्लियर पॉलिसीज हैं 1986 की पॉलिसीज हैं, 1968 की जो पॉलिसीज हैं, 92 में जो रिवीजन हुआ था उस रिवीजन में क्या फोकस आया था, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ये सब्जेक्ट टीचर ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के पीछे के पर्पस क्या है, उसके पढ़ाने के पीछे के उद्देश्य क्या है। सिर्फ 2+2 4 पढ़ा देना इसका पर्पस है, या इसका बड़ा उद्देश्य क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। तो इन सारी चीजों को समझना हमारे लिए पहली जरूरत हो गई थी कि हम इन सारी चीजों को समझें और फिर हम टीचर्स के लिए कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाए। तो फिर हमें लगा कि यहाँ पर टीचर्स के साथ जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेवेंट थिएटर की जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन में ड्रामा को हम पेडागोजी के तौर पर कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं कक्षा कक्ष में, इसको लेकर हमें काम करना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि ड्रामा एक पेडागोजी है क्लासरूम के लिए, जो ईवीएस टीचिंग, भाषा की टीचिंग के लिए या सामाजिक विज्ञान की टीचिंग के लिए या और सब्जेक्ट्स की टीचिंग के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये बड़ा क्लीशे टर्म है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर रखना जरूरी होगा कि क्योंकि वो उसमें बहुत रिलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं, बच्चों की डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं। तो वो एकेडमिक जो डेवलपमेंट है, एकेडमिक डेवलपमेंट भी इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। कई बार सेपरेटली भी हम इसको देखते हैं, ऐसे देखा जा सकता है। तो अगर हमें ये काम करना है तो ड्रामा एज पेडागोजी के इर्द गिर्द हमको अपने कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का करिकुलम डिजाइन करना चाहिए, और उसके मल्टी लेयर काम फिर हमने डिजाइन किए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने जो एजुकेशन सिस्टम है या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या अर्लियर पॉलिसीज की जो रिकमेंडेशन है, उनके जो आइडियल्स हैं उन्हीं को पढ़ना समझना शुरू किया, बल्कि यहाँ हमने थिएटर की भी अपनी जो मल्टीपल पोजीशंस हैं कि कहाँ थिएटर इन एजुकेशन कहा जाता है, कहाँ ड्रामा इन एजुकेशन हो जाता है, कहाँ वो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड है, कहाँ वो प्रोसेस ड्रामा है, कहाँ वो क्रिएटिव ड्रामा है। तो टीचर्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको ये एकेडमिक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम इसको सिनोनिमसली इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी टर्म ये किसी भी टर्म को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पोजीशन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो ये जो थ्योरेटिकल पोजीशंस हैं इनको भी हमने समझा। इन दोनों चीजों को समझने के बाद जो टीचर्स के लिए हमें रिलेवेंट लगा, ये ज्यादातर शासकीय विद्यालयों के शिक्षक हैं जहां मैं काम कर रहा हूं, और राजस्थान में जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री टीचर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि यहाँ पर सबसे पहला तो काम हमें यही करना चाहिए कि हम एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करें जिसमें शुरुआत में क्या ड्रामा इन एजुकेशन क्या है इसकी एक समझ पैदा हो, और वो समझ पैदा होने के लिए दोनों ही चीजों को हम एक साथ लेकर चलें, जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हों और जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में अगर हम ये कहें कि टीचर्स को इस बात की समझ होनी चाहिए कि बॉडी मूवमेंट बच्चों के सीखने सिखाने में कैसे फर्क पैदा करता है, टीचर को इस बात की समझ होनी चाहिए कि बच्चों के खेलों से उनके विकास और उनके सीखने में क्या फर्क पड़ता है, टीचर्स को इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो नाटकीय खेल बच्चे सहज ही बचपन में खेलते हैं उनका उनके सीखने सिखाने से, उनके विकास से उनका क्या लेने देना है, और कैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे स्किल्स उनके खेलों में ही डेवलप हो जाती है।
तो इसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है, इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। तो शुरुआती कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम बहुत इंट्रोडक्टरी काम करें और उसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों पर्सपेक्टिव आ जाए। कि टैगोर ने भी बहुत बेहतरीन बात की है बॉडी मूवमेंट के बारे में, अगर हम ये देखें, या हमारे बहुत सारे जो इंडियन फिलोसोफर्स रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है, तो कृष्णमूर्ति और टैगोर क्या कह रहे हैं, उनके बरक्स पियाजे और वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, या मॉडर्न थियोरिस्ट क्या कह रहे हैं, नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, इनकी एक तुलनात्मक अध्ययन भी उनके सामने जाए और फिर ड्रामा के बारे में हम कुछ सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट उनके सामने क्रिएट कर पाए। सरकारी स्कूल के टीचर्स के साथ काम करते हुए ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई कि जब तक आप उनकी भाषा में बात नहीं करते तब तक आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोलते रहे अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी में, आप एक आयरलैंड से आए हुए व्यक्ति की तरह लगेंगे उनके सामने। जब तक आप उनकी जुबान में बात नहीं करते तब तक आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और खासकर सरकारी स्कूलों के टीचर्स के साथ ये चैलेंज है कि उनके जो ईगोज होते हैं वो ईगोज बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कॉन्क्रीट होते हैं, वो सहज ही आपको स्वीकार नहीं करते। जब तक कि आपके पास ये पर्सपेक्टिव्स नहीं होंगे सारे, और सिर्फ पर्सपेक्टिव ही नहीं, उसका प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन करने का मादा आपके पास नहीं होगा, तब तक टीचर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पहला कोर्स हमने ये बनाया। दूसरे कोर्सेज फिर बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज है, जिसमें सामाजिक विज्ञान में हम ड्रामा का अगर प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। दूसरा कोर्स अगर हम ये कहें कि भाषा में अगर हमें ड्रामा का प्रयोग करना है तो भाषा के सिखाने में हम ड्रामा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी से लेकर एलिमेंट्री की जो हायर स्टेज है वहां तक। और कोर्स है जिसमें हम क्रिएटिव ड्रामा पे बातचीत करते हैं कि क्रिएटिव ड्रामा की नेचर क्या है, क्रिएटिव ड्रामा की फंक्शन क्या है। वहां थोड़ा सा हम सब्जेक्ट की पेडागोजी से मुक्त होकर बच्चों के फ्री एक्सप्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स को सेंटर करके क्रिएटिव ड्रामा का एक कोर्स टीचर्स के लिए हमने डिजाइन किया। फिर चौथा कोर्स अगर हम ये कहें तो बहुत ही क्रिटिकल पेडागोजी के लेंस से आता है, और हम ये कहते हैं कि फोरम थिएटर का एक कोर्स टीचर के लिए हो कि इन जनरल वो फोरम थिएटर की नेचर एंड फंक्शन को समझें और उसके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और क्रिटिकल थिंकिंग से उसका क्या एक लेना देना है, इस बात को समझें। तो ये एक जर्नी टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हमारी रही है। इसमें अगर हम ये देखें कि संख्यात्मक तौर पर अगर हम देखें तो अब तक लगभग 3 लोकेशंस पे, जिसमें राजस्थान शामिल है, जिसके अंदर उत्तराखंड शामिल है, जयपुर शामिल है और टोंक शामिल है। राजस्थान में 2 जगह शामिल है और अलग अलग जगह भी हम करते रहे। तो अगर हम ये कहें कि अभी तक हम हमारा जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिसकी मैंने बात शुरुआत में रखी थी, उसको लेकर लगभग 10,000 टीचर्स के साथ हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में 3-3 दिन के 6 दिन के मॉड्यूल्स में ये इंट्रोडक्शन का काम कर चुके हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप लगभग सेलेक्टेड टीचर्स का 250 के आसपास टीचर्स का, 10,000 में से 250 टीचर्स का जिनका एक सीरियस इंक्लिनेशन ड्रामा के प्रति है, उनके साथ हम एक एडवांस का काम कर सकते हैं और उनसे ये अपेक्षा रख सकते हैं कि अब वे अपने सब्जेक्ट में जब ड्रामा को पेडागोजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो खेल क्यों करा रहे हैं, इस बात का जवाब अपने अधिकारी को देने के लिए उसके पास होगा। तो ये एक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक जर्नी ये रही है हमारी। दूसरा, पॉलिसी के लेवल पे जब हम बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारी के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है, तो मुझे ये लगता है कि पॉलिसी के बारे में बात करते हुए 3 तरह की ओपिनियंस को मैं देख रहा हूँ। एक तो एक्सट्रीमली उसको डिस्कार्ड कर देती है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इस पॉलिसी में कुछ भी नहीं है, और बहुत रेडिकली उसको चैलेंज करके खत्म कर देती है कि ये पॉलिसी बिल्कुल अनुपयोगी है भारतीय समाज के लिए।
और दूसरी तरफ हम ऐसी ओपिनियन देखते हैं जो दूसरे एक्सट्रीम को पकड़े हुए है कि आज से पहले कभी ऐसी पॉलिसी नहीं आई थी, अब ये पॉलिसी आ गई है तो दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा और हम विश्व गुरु बनेंगे। और ये मतलब बहुत ओवर प्रेजिंग नोट में हम ये बात बोलते हैं। तीसरी पोजीशन ऐसी है जो हमारे जैसे लोगों की होती है, जो अभी तो फिलहाल समझना ही चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, और बार बार उसको जब पढ़ते हैं तो हमें नए अर्थ समझ में आते हैं और अपने पुराने अनुभवों के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो मैं ये तीसरी कैटेगरी के एक आदमी के तौर पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बार बार पढ़ रहा हूं और उसको व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉलिसी में हमारी जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं और एजुकेशन से जो अपेक्षाएं हैं इस समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको कैटर करने की कोशिश की गई है और उसमें उसका एक इंक्लूजन हमको दिखता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम नया कुछ है। ये 1986 और 1968 की जो पॉलिसीज थी, हम इसका एक उसके कंटिन्यूम के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। और 1986 में जो हम अचीव नहीं कर पाए थे उसका एक क्रिटिसिज्म भी ये रखती है, उसके कई सारे कारण इसमें बताए गए हैं पॉलिसी के अंदर ही, हम ये देख सकते हैं। जहां तक थिएटर के संदर्भ में हम इस पॉलिसी को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रीइटरेशन इस पॉलिसी के अंदर हुआ है। वो ये हुआ है कि अब करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर की कोई दीवार नहीं रहेगी। और इसका ये बेसिकली एक रीइटरेशन है। करेक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली। है ना, हम ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो 1992 की रिकमेंडेशन के आधार पर बना था, उसमें अगर हम देखें तो थिएटर को दो तरह से देखा गया। यहाँ मैं अभी थिएटर और ड्रामा का एकेडमिक फर्क करके बात नहीं कर रहा, मैं थिएटर को एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म के तौर पर इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 थिएटर को दो तरह से देखता है। एक तो सब्जेक्ट के तौर पर भी देखता है, दूसरा उसका प्रयोग दूसरे विषयगत अवधारणाओं और उनसे रिलेटेड कौशलों के निर्माण में, उनके विकास में भी उनके प्रयोगों को देखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बच्चों के संदर्भ में नहीं, एनसीटी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, उसके अंदर एक कंपलसरी विषय के तौर पर इसको देखा गया है और टीचर को की कैपेसिटी इसमें बिल्ड होनी चाहिए और क्रिएटिव ड्रामा को एक मेजर टूल के तौर पर वहां देखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2020 की जो पॉलिसी अगर ये कह रही है कि अब को करिकुलर और करिकुलर की दीवार नहीं होगी, तो ये बेसिकली रीइटरेशन है। दैट इज इन इटसेल्फ इज वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बट पिछली पॉलिसीज का एक कंटिन्यूम है। ये फिलहाल मुझे लगता है कि मैं अभी सिर्फ इतनी ही बात रखता हूँ, बाद में दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं इससे आगे की बात फिर। धन्यवाद। इनफैक्ट जिस रिआइट्रेशन की बात की है उसी का एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल समता जी ने भी दिया था कि ये बात वापस मेरे जहन में इसलिए आई क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल में थिएटर नहीं करना, मुझे स्कूल में वो एनुअल डे नहीं सेलिब्रेट करवाना है, मुझे उसमें इनकलकेट करवाना है, जिसकी बात आपने भी अभी पॉलिसीज के द्वारा कही है। और the good part is you also included another part. You spoke about the challenges, Abhishek ji. So taking that as a question, Asha ji, I'm reaching out to you with one is obviously your journey, how it has been, and the gaps. What were the gaps, or what were the challenges that you've seen in the scene of theatre and education in your journey? Right. Thank you, Srinivas. I'm so happy to be a part of this discussion because this needs to be talked about until बात करने को कुछ रह नहीं जाए, क्योंकि रीआइटेशन की बात जो अभिषेक जी ने बोला, this needs to be reiterated
क्योंकि अगर मैं खुद का, let me begin with my personal journey. What happened, perhaps the first time I actually did theater was when I was already doing my major in English, in the normal BA honors course in college. And I discovered Shakespeare properly. And because we had to read Shakespeare. Now, reading Shakespeare is very different from doing Shakespeare. So, so we, when we started doing A Merchant of Venice, for example, we said, okay, let us do this. And again, please remember, very marginal space, always, like Samta has said already. We have these youth festivals in college. So we said, okay, let us do this Merchant of Venice Act 4 Scene 1, okay, the usual scene that everybody does. So let's do that. And we were an all-girls college, so we were all playing male roles except for the Portia role. And so we started doing that play. And once wo theater ka कीड़ा घुसा तो घुस के रह गया. So which meant that जब मैं MA करने गई, and again because MA theater के लिए करने का तो कोई option ही नहीं था. Okay, now that is, I'm looking at higher education currently. Abhishek ji ne or even Samta has talked about how, the secondary and primary education, elementary education. Theater is always treated as something that is extracurricular or co-curricular. It is not mainstream. You don't get marks for it. It's important. You don't get marks for it. All right. So when we went and for my master's, again, I specialized in drama. I did my PhD with a theater person, and then I became a professor. I started teaching in the university, and I chose always to teach the theatrical components of the syllabus that for English MA we have. So I refused absolutely to teach fiction. I normally even now teach just poetry and theater, drama. The fact that we have two words for the same thing is very, very significant. And most of us have always dealt with that kind of a dichotomy. You say drama when you're actually talking about the page, and you say sort of theater when you're thinking about the stage. So that kind of very peculiar dichotomy that exists with the word itself is something that is perhaps so significant to whatever we are talking about right now. So, okay, so my PhD was done, and then I started teaching, and then the teaching always with students reading in class, and that I continue till today. But there was really no option for any of these students some of them were extremely passionate about what they were reading. And, they had, apart from doing an MPhil or a PhD, and that also is always a written word, which has really no connection with the embodiment of theater. That divorce that we faced when you're teaching theater as drama or theater as a literary artifact. That is a dichotomy that we have dealt with. And I've very often, the only one way we were able to get it, with that recent policy change that came in with the CBCS system, we could bring in value-added courses, and then we could actually do a drama, which was, again, it was not a marked paper. So, if you're doing a master's, you could sort of only get in edgewise. Usme aap mainstream marking ka aap soch bhi nahi sakte. So this is the problem, that the quandary that I'm constantly being faced with. For example, it's all right to talk about the West in terms of our education, because I think our academy is based on the Western academy. Hamara pura education system probably Western system pe hi based hai. But West mein abhi bhi, even though currently I know that so many undergraduate drama programs are being wiped out across America, for example, बहुत सारे programs को cancel कर दिए गए हैं in the face of the pandemic. But nevertheless, the fact is that they did have undergraduate programs for a BFA in theater, okay, which is not available to us in India.
Okay, at the most, if you're interested in the performing arts, you can do a BMuse, a Bachelor of Music in Dance or Music. I don't think you do get a bachelor's degree in theater as such. Correct me if I'm wrong, because you don't really get it apart from specific colleges. I think I can count them off in my hand. You have Christ University that does give a triple major. One of them is theater. You have a place in Thrissur. You have Rabindra Bharati. I think undergraduate degrees और 6-7 जगहों में होगी और उससे ज्यादा में नहीं मिलती है. अगर आप थिएटर में इंटरेस्टेड हैं और आप आगे जाके थिएटर पढ़ाना भी चाहते हैं, थिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेचर एंड ड्रामा, तो you need to have a master's degree. You need to be able to qualify in your NET or NET exams that will qualify you to teach in a university or a college. So theater needs to be one of the subjects there as well, which is not there till now. तो आपको वो क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको यूजीसी पे स्केल्स भी नहीं मिलेंगे. So you see, it's a whole stream of things. So from the undergraduate to the graduate, to the PhD and to beyond, so that you actually create theaters. See, it's always going to be practice related, but it has to be something that is also academic in terms of the whole. जैसे मैंने English पढ़ा और अब भी English पढ़ाती हूँ. It's another matter that I teach mostly theater. But I'm getting a certain kind of a space which is there available to all the students that I'm teaching, right? But it's not available in a specific area like theater. Now, NEP, although जैसे अभिषेक जी ने बोला, it does reiterate this whole idea of interdisciplinarity, but it nevertheless does not, I think, till the current position is, they do not really allocate, and I think funding is the key. You need to have theater departments across universities, across all the colleges that are there, and it is only then that you will be able to create this whole network. You talked about capacity building. That capacity building will come in only through that. You need funding for that. उस funding के बारे में NEP में ज़्यादा कुछ है नहीं. Okay, it's a broad idea. Sounds very good. Yeah, it's not really there. Where is the funding coming from? I can go to my vice chancellor and say, sir, let us start our theater department. पैसे कहाँ से आएंगे? Where will he bring the money from? Right. Okay. So it's all very well to talk about it in paper. True. But where in practicality, it is all about the money. How does the government propose to fund these programs? And these logical programs, what I'm talking about, that you have a full network that will, which will take in, students and produce people who will again feed that system the way it does for other subjects. True. Right? So that has been one of the key things that I have constantly been talking about. In fact, when we were asked from the university to put in our suggestions, we had a little round table. So as the head of English department, I actually put in this particular suggestion for which our university submitted to the NEP when it was still in the draft stage. So, but then the problem just remains. Now, see, in school, for example, Samta was talking about, about the extracurricular idea of having an annual show. There are certain schools, and they do it on their own, and these are extremely expensive public schools. For example, there is the Assam Valley School in Balipara in Assam. This is a place where my son was studying. And, my son was extremely bad. And now I'm talking about the personal. And the personal is extremely relevant because it's also very political, as we all know. तो मेरा बेटा मैथ्स में absolutely zero था, जैसे मैं भी थी स्कूल में.
Okay, but he was extremely good with other subjects, the humanities subjects. ICSC mein kya hota tha? That was the one school that allowed him to give up maths at the ICSC level. Okay, that's only, not many schools do that. He opted for theater arts in there, and he kept on doing theater. They actually are usually, they do at least 3 productions a year. And they are mega productions, very, very big productions. They get in experts from outside, and then they mentor the whole thing through. I think Samta is familiar with that process. But then what I've seen is that plenty of these people actually go and try and find an undergraduate program where they can find more training to hone the art. You know, it's not enough to just learn some things in school. You need a full body and voice and movement and, you know, everything, theory that will give you one step ahead in that particular direction. So once you have your ICSC and class 12 is over, where do you go after that? Okay. Like I said, I've already repeated, I'm not going to repeat what I said. The options are so limited, and they're limited because there is no proper framework for theater in the higher education system. Absolutely. And so if you see the panelists over here, you have Abhishek ji, who's been working with Azim Premji Foundation, a corporate who has invested the time, money, everything, and the resources. You have Samta ji, we're an institution where we talk about so few options, and probably because I am also from Bangalore and have been knowing and following the institution as well. It works like a hub for theatre for students at least. Vijay ji from the government itself, and you from another university. Pondering over these things, leading me to the question, and while there were a lot of other general questions that I wanted to ask, considering the time constraints, Samta ji and Asha ji, this is a question particularly to you because you've been dwelling and working with the children. And Abhishek ji, Vijay ji, I will come to you with another question, which is focused more on the teachers, because that's been your forte. So, how does theatre respond to the needs and interests of children in the current age? Asha ji, you've been majorly working with the students of undergraduate, if I'm not wrong, and Samta ji, you postgraduate actually. Postgraduate, I teach MA students, yeah. Yeah, and with Samta, I think you've been working with the kids right from the kindergarten up till class 12. So how? From 1.5 to yeah. So how does the implementation obviously also varies, right? Of theatre. So how do you respond to the needs and interests of the children? How is it catering to that? I think it'll be interesting to know from both of you, because probably the urgency or the need for the implementation, the answer will be you two, and how you're going about it. Asha, I think I'll take it from you. You start. See, you're basically asking me about a future projection of some sort. Not. So even now, when you're, what is the change that you're seeing with the students versus one teaching normally vis-a-vis implementation of theatre? Yeah. Okay. So see, we do this I told you we do this value-added course. So, and we are also a department of literature. So we have to walk a certain kind of tightrope. It has to be literary as well as theatrical. All right. So we have that kind of. Why am I not able to see anyone? No, we're there. I think the team is kind of shuffling and trying. You are there. So let me continue. Yeah. So
So say, for example, we take a literary text that is prescribed for us in the theater, in the drama section. So what we have is Mother Courage. And then the students take it, and absolutely unbelievably, they are able to script it, re-script it. We do a couple of workshops with them. We do one for the script, one for the body and movement, and one for the voice. And then we give it off to them. The text is there, yours. Now change it, do what you want to do with it. And they change it into Bahadur Amma. All right. So Mother Courage turns to Bahadur Amma. The whole adaptation becomes trilingual. All the choric pieces will be done in Assamese. Bahadur Amma will constantly speak in Urdu, Hindi, and you have, of course, the British characters, because they adapted the whole thing into the 1857 revolt. All right. And so you also have British characters, so you bring in English as well. We are the Department of English. So अब देखिए किस तरह से इन्होंने बैलेंस करके सारे चीजों को खींचा, just in the at the level of the scripting itself. And then we don't have a stage to perform, or because otherwise, you know, it's too far away and it's too big, the main auditorium that is there. We would like to involve everybody on it. So we bring in because this is Brecht. So we said, let us do it right there in the canteen, wo hamara cafeteria hai, uske paas mein thoda sa space tha. So we just wrapped the whole production around that. And believe me, these are students who are 20 plus already. They have had no exposure to theater previously. Maybe one or two of them out of 20 will have some kind of exposure to doing theater, but then they are able to do all these things, do the entire production design, and do it repetitively. And of course, every time we would use a different venue, and it would work out in a different kind of fashion. It was amazing to see that, you know, these are literature students who are actually not trained in the theater arts, but they're able to do what they are doing. So that is something that I found extremely interesting. And I think that creativity, which we very successfully kill otherwise, is able to, you know, just flow out. And that was such a wonderful thing. And it happened again when we did Waiting for Godot, or we did A Doll's House. It just flowed again and again. You know, they would translate, and I made sure that they would have a trilingual translation, because that works for everybody. Because we use the local language, we use Hindi and we use English. So 3 languages, and everybody is enjoying themselves, and that element of fun jo I think is completely missing in our education system. It comes back and everybody is so rejuvenated, right? And अगर हम सोचते हैं कि ये चीज हम properly करें, you know, we were trying to get them to perform at the Guwahati Theatre Festival, for example, which I curated for a couple of years. So this Guwahati Theatre Festival, but we didn't have the resources, you know. So the money wasn't there. I keep coming back to that funding. Yeah, absolutely. And that's a very obvious thing. So yes, we have to get back. Yes, Sampath? I just think that the idea of multiple perspectives, different ways of looking at things, you know, which the theater gives. The space to question. There's so many times, you know, when there is a question at home as to, you know, whatever regarding religion or culture, it's like shoo, 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 shoo. Or maybe at school, it's like, okay, this is the subject and this is what you learn, and that's it. But where is the space to question that? Why do we learn this? What do we do? Why are we doing what we are doing? So I think to provide them that space, the theater is a really phenomenal place, you know, and I always tell them that I want you to make a mistake. You know, because it's very difficult to break that conditioning, which is, auntie, but is it okay? Is it okay? What I did, was it right? Was it correct? This constant questioning that comes from them. Well, everything is correct. Every idea is possible. It's possible. Just to give them that space of possibility, which really gives them that confidence that, you know, so of course, always a theater class starts with, oh, but auntie, I can't think of an idea.
I don't know. Because they are so used to being told that, Right. when you get that space, but you know it, you also are unique. You have an idea. Every child, every person is creative. Everyone has something to give. Now, how do we explore that? And how do I convince them of that? Is by doing the theater, by giving them that space. And that leads to their ideas, leads to discussions, makes them understand that they exist, and they can contribute, than being told what to do always. So I think that's where the theater really, really helps them. And I will just give a quick four of my works that kind of gave them that understanding, which will help you. Is the BMTC Bus Play. Now, for Right. me, these children come from very affluent, rich families. What they know about Bangalore city is restaurants and cafes, but they don't know the city. They Mm. don't know the city, and they travel in these BMTC local buses every day, which are hired for them to take them home. But what about the driver and conductor who travel through the city every day from one point to another? And how do they see the city? So Mm. I made these children travel the public transport with me, and they didn't know how to buy tickets. So we bought tickets and we traveled from one point to the other. We observed the characters in the bus. We observed the city up and down, what all we saw. And from there, we took off to questioning things around us. And that led to the BMTC play. Similarly, there was this Kaveri issue in Bangalore that happened, and there was this Kaveri strike. So a lot of our work is made from the realities that they live in. And what are they thinking about it? How is it affecting them? So the Kaveri issue became a strike and a band, and the school was closed. So when we came back next day, we asked them, "Do you know why the school was closed? Why was there a band in the city?" And then we spoke about it and what do they feel about it. And that led to another play on the Kaveri that we made in the school, a play that they performed. And they spoke about different fishes in the water and their political quest with the Kaveri issue. So that was another work. And another work that I did was Let's Dig In. Let's Dig In was a junkyard behind our old school. And I told Mhm. them, "What is this junkyard? What do you think would be here?" And they said, "Let's go and see." And we walked through the junkyard and we tried to imagine stories from the junk that we saw. So, what is it that we cannot see? But we can, what is it that we cannot see, but we can see? So, Right. questioning and getting them those trigger points led to questions like, Auntie, does Google know everything? Yeah. Well, I don't know that answer. Maybe you should ask that to the audience. Does coconut water? A lot of coconut water is being sold in Bangalore, and then they say, "Yeah, Mm. but it's not offered in parties." And I said, "But why?" "Because it's not a cool drink." So I said, "Well, then who decides what's a cool drink?" So it's a question on the society that what is cool, what is not cool. So I think this play, and then that led to this play called Let's Dig In, which was had these multiple questions by them. So I think the theater is fantastic space for them to look at life around them, reality around them, get aware of that, and question it, and to be able to creatively express it, what they want to say. I always tell them whenever we make work on stage, we should either have something to share or something to question. So that's what I think they're looking at, and I think that's given them a lot of perspective. And what Abhishek was talking about, critical thinking and other things just happen with this. Yeah. That's Right. it from my side. I think you said it in the very first go, the one word, the question, uh, and how you related it with their personal lives at their home, where they're not supposed to ask questions, and you kind of free them, liberate them again here in school, because again another purpose of theater, because that's something which was the same thing was followed in school also earlier. Like, you can't question this, you can't question teacher, you can't question this, and the same thing at home. And then that's how we grew to become this. So, very interesting. So, on that question, one note, Abhishek ji and Vijay sir, this is a question to you, sir. We have spoken about, and in the draft, it was mentioned about our artists helping, trying to help. But even before the draft, even before the policies, you both have been striving towards this, working towards this, where you pick up artists and help them become teachers or help them train the teachers uh, to teach children, not theater subjects, but through this beautiful medium. So, how can
artists help the classroom teachers embrace the educational importance, of creativity for children. Is basically something which I wanted to ask. किस अभिषेक जी बोलेंगे पहले या मैं नहीं कुछ ये जो आप कहिए। क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हुआ आगे बढ़ूंगा इसमें जो आपने पूछा है क्वेश्चंस। कुछ इंफॉर्मेशंस भी गवर्नमेंट की तरफ से है जो देना बहुत जरूरी है, वो क्योंकि अभी वो प्लानिंग में काम हो रहा है, जब आएगा तब लोगों को पता चलेगा, तो वो उसको भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। जो असल में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का होता है कि हम थिएटर एजुकेशन और एजुकेशन इन थिएटर दो चीजें हो जाती हैं, एज ए सब्जेक्ट थिएटर और एज ए मीडियम, या उसको कह सकते हैं पेडागोजी, जो अभिषेक जी ने भी कहा थिएटर और ड्रामा की, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं क्लासरूम में। तो हम जैसे अभी स्टूडेंट्स को जो हम सिखाते हैं, अभी एनपी तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले हमारा जो प्रॉपर सिखाने का तरीका है उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जो पेडागोजिकल टेक्निक्स, जिसको हम थिएटर एजुकेशन इज थ्योरेटिकल पेडागोजी, तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और ड्रामा एजुकेशन इज सिमिलर प्रैक्टिसेस, जो इसको क्लियर है कि वो सिमिलर प्रैक्टिसेस सिमिलर टेक्निक्स हैं, लेकिन एक ड्रामा टीचर स्कूल के अंदर दोनों बहुत सारी चीजों पे काम करता है। तो वो जैसे हम जो टीचर्स को जब सिखाते हैं तो उसमें सबसे पहला क्रिएटिव ड्रामा भी है, प्रोसेस ड्रामा भी है। जो प्रोसेस ड्रामा मतलब एज अ पेडागोजी, और क्रिएटिव ड्रामा इज अ पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, इसमें बहुत सारे थिएटर के एलिमेंट्स को एज एन आर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। एंड इंटरप्रेटिव ड्रामा जिसमें टेक्स्ट वर्क को कैसे बच्चों के साथ काम किया जाता है। तो और इसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्निक्स आ जाती हैं, मेंटल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कुछ ड्रामा बेस्ड पेडागोजी आ जाती हैं, जो बहुत डिफाइन की गई स्ट्रेटजीज डिफाइन की गई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है स्कूल के अंदर, ये हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि पहले बेसिक कंटेंट को आप समझ लीजिए और प्रैक्टिसेस को समझ लीजिए, देन इसका पर्पस आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो वर्कशॉप फॉर्मेट में करें, चाहे परफॉर्मेंस के थ्रू बच्चों को कुछ सिखाना हो, चाहे बच्चों के साथ परफॉर्मेंस करना हो, तब भी आप कैसे उन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो स्कूल के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट में आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैरिकुलम यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या कोई कंटेंट को पढ़ाने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, लिटरेचर या लिटरेसी को पढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थेरेपी, अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर तो उसको थेरेपेटिकल कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। आर्ट फॉर्म यानी कि थिएटर एक आर्ट फॉर्म भी है, तो उसको भी आपको टीच करना है। तो कोई विषय, कोई स्क्रिप्ट पढ़ानी है, या कोई उसके ऊपर कोई वर्क करना है, या किसी प्रैक्टिशनर के काम को समझना है, या कोई एक थॉट या थ्योरी को समझना है, तो उसको भी इस टेक्निक से कैसे समझेंगे और समझाएंगे, ताकि बच्चों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चों के साथ कॉग्निटिव टू इफेक्टिव नहीं जा सकते, इफेक्टिव टू कॉग्निटिव जाएंगे। ये थ्योरी है, हम इनको बार बार बताते हैं। बड़ों के साथ आप कॉग्निटिव टू इफेक्टिव जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में या बड़े बड़े टीचिंग मतलब एडल्ट के साथ जब हम काम करते हैं तो पहले हम स्क्रिप्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस पे जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, पहले इफेक्टिव में आना होगा, देन कॉग्निटिव, उनकी अंडरस्टैंडिंग लास्ट में क्रिएट होगी। तो इन सब थ्योरीज को समझाते हुए, चाहे इमोशनल की हो उनकी, चाहे परफॉर्मेंस भी अगर बच्चे कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड परफॉर्मेंसेस कैसे वो डेवलप होगा जिससे उनकी डेवलपमेंट हो बच्चों की। और इसके अलावा आईसीटी एंड फिल्म एंड टेलीविजन और ये जो कंप्यूटर वर्ल्ड के थ्रू बहुत सारी चीजें ड्रामा में आ जाती है। ड्रामा का आईसीटी क्या है, उसको कैसे, जैसे अभी हमने पेंडेमिक में सारी चीजें ऑनलाइन और आईसीटी का बहुत जबरदस्ती यूज किया, हमें भी नहीं पता था, लेकिन स्टूडेंट के साथ ये टीच करना पड़ा, और हमारे कोर्स में है भी, लेकिन ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको स्कूल के अंदर बहुत जरूरी है। तो लेकिन इसके मेरा बस ये कहना है कि इसका बेसिक क्या है वो हम टीच करते हैं। तो हमारे यहाँ जो ड्रामा टीचर हैं वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन, जो आर्ट इंटीग्रेशन जो सीबीएसई बोर्ड ने लागू किया है, और जो आर्ट एजुकेशन यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट के तौर पर डील किया जाएगा इसको, तो ये सारी चीजों को इसमें हम लोग इसको अप्रोच करते हैं ट्रेनिंग का। तो बेसिक जो सिस्टम है ट्रेनिंग का, एक चीज आप समझा दो उनको जिसके थ्रू वो और जितने भी पर्पसेस हैं स्कूल के अंदर, आउट ऑफ स्कूल, सोसाइटी में,
एनजीओ के साथ काम करेंगे, कॉर्पोरेट के साथ काम करेंगे। एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए जितने भी तरीके ड्रामा में, थिएटर में हैं, वो सब उनको सिखाया जाता है, चाहे वो इंडियन फिलोसफी हो, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफी हो। तो एक तो ये इसमें था। दूसरा एक इंफॉर्मेशन ये देना है कि जो जैसे एनपीई में फाउंडेशन लेवल है, प्रिपरेटरी लेवल, अब नए लेवल्स बनाए गए हैं, मिडिल लेवल है और उसके बाद सेकेंडरी लेवल है, देन हायर एजुकेशन पे आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो गवर्नमेंट अभी जो परफॉर्मिंग आर्ट का है एक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स बना रही है, जो परफॉर्मिंग आर्ट का, जिसमें म्यूजिक, डांस और आर्ट और ये सब मिक्स होंगे। ये कोर्स आगे जिनको भी करना होगा वो 12th के बाद डायरेक्ट करेंगे और 4 साल के बाद वो स्कूल के अंदर, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे काम करें या प्रिपरेटरी लेवल पे काम करें या मिडिल लेवल पे काम करें या सेकेंडरी लेवल पे काम करें, वो उनको जॉब उस डिग्री से मिलेगी। दूसरा एमए इन थिएटर है, तो 9 से 12th यानी कि जो सेकेंडरी लेवल है उसमें वो टीचर हो सकते हैं फ्यूचर में, जो अभी एनपीई कहता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि बहुत बड़ा स्कोप जो थिएटर का इसमें खुलने वाला है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बार बार स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि या तो आप, एक तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और टेक्निक्स भी होनी चाहिए, फिलोसफी भी होनी चाहिए, विजन भी होना चाहिए बच्चों के साथ काम करने का। तो इसको लेकर के हम ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा काम, हमारी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेनिंग देने की है और सही ट्रेनिंग देने की है। गलत तरीके से ट्रेनिंग दे देंगे तो कई वर्षों तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सही ट्रेनिंग क्या है, चाहे वो वेस्टर्न में हो या इंडियन में हो। जैसे इस समय हम लोग बहुत जबरदस्त रसा थ्योरी, जो इंडियन जो नाट्यशास्त्र में जो रसा थ्योरी है और जो बाकी और भी है, इससे हम टीचिंग कैसे कर सकते हैं, ये और जो नई हमारी इन्वेंशन हुई है इसको मिला करके, ये तो जबरदस्त भारतीय तकनीक है जिसका उपयोग नहीं हुआ अभी तक स्कूल के अंदर ना बाहर। और अभी भी हम, क्योंकि नाट्यशास्त्र भी हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वो लोग उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है ना कुछ, लेकिन इसके अंदर इतनी जबरदस्त टेक्निक छुपी हुई है जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। तो वेस्टर्न और इंडियन दोनों को मिला करके हम कैसे क्लासरूम में जा सकते हैं, हमारे फोक को कैसे क्लासरूम में ले जा सकते हैं, जो भी कल्चर है हमारे उसको क्लासरूम में कैसे ले जा सकते हैं। तो बेसिक जो टेक्निक हम लोग करते हैं, बेसिक एक सिस्टम सिखाते हैं उनको, जो एज ए ड्रामा, एज ए पेडागोजी। और एक चीज और है कि थिएटर में एक बहुत, जो हम लोग जिस टेक्निक्स के साथ काम करते हैं उसमें दोनों चीजों पे काम करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि एजुकेशन इन थिएटर को एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं, क्योंकि एनएसडी है तो प्रोफेशनल थिएटर का भी काम करती है। दूसरा, बच्चों के साथ थिएटर कैसा हो एज ए एडल्ट, एज ए डायरेक्टर या एज ए गाइड, और स्कूल के अंदर भी कैसे काम करें, इसके लिए इसमें जो हमारी अप्रोचेस होती हैं वो थोड़ी सी चेंज है। इसको बस समझ लीजिए, इसको मैं इसके बाद बात समाप्त कर दूंगा मैं अपनी, कि क्या है कि जो एक डॉरोथी हिटकॉक थी जिन्होंने ड्रामा की डेफिनेशन बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में चेंज कर दी, ड्रामा टीचिंग को, डॉरोथी हिटकॉक ने। तो ड्रामा को उन्होंने जो नई एंगल से देखा जब उन्होंने, तो ये सारी थ्योरीज आ गई, ये जितनी थ्योरीज बदली हैं क्रिएटिव ड्रामा के बाद, प्रोसेस ड्रामा की जो थ्योरी आ गई वो एज ए पेडागोजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से। अभी क्या होता है, जैसे हम लोग थिएटर में क्या करते हैं, थिएटर का मतलब ये समझते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंसेस, और हमें क्या दिखता है, स्पेस, एक्टर एंड ऑडियंस, ये मिल जाए तो एक परफॉर्मेंस होती है, या टेक्निकल चीजें भी जोड़ लीजिए या स्क्रिप्ट जोड़ लीजिए, ये 5 चीजें जोड़ करके थिएटर देखते हैं और प्रोफेशनली इसी के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन डॉरोथी हिटकॉक ने दूसरी चीज देखी कि थिएटर के अंदर एक और इंग्रेडिएंट्स है, जिसको है कुछ चीजें डिफाइन की उन्होंने, और जिसकी एक्सपर्टीज क्लासरूम में यूज की जाती है और एज ए पेडागोजी यूज की जाती है। वो है, उन्होंने कुछ चीजें, स्पेक्ट्रम है, फोकस है, कंट्रास्ट है, सिंबल है, ये जो थिएटर के एलिमेंट है इंटरनल, जो दिखते नहीं है आपको बाहर से, यानी कि जो हिडन है, उन एलिमेंट्स को लिया उन्होंने, और वो इससे एक नई थ्योरी उन्होंने क्रिएट की, और इसके ऊपर फिर नई नई थ्योरीज बनती रही, और बहुत सारे आप जो ये देखते हैं मेंटल ऑफ एक्सपर्ट या प्रोसेस ड्रामा, क्रिएटिव ड्रामा, या थिएटर की जितनी भी प्रैक्टिसेस क्लासरूम के अंदर बदली हैं वो उन्हीं की वजह से बदली हैं। तो वो उस पे फोकस करते हैं कि क्लासरूम में फोकस होना चाहिए, क्लासरूम में स्पेक्ट्रम, जो कंट्रास्ट और जो सिंबल्स हैं थिएटर के, या जो और भी जो चीजें हैं, इसको भी डिफाइन किया। वोल्टन भी उनके साथ एक एजुकेशन के थे, उन्होंने मिलकर के इसको डेवलप किया, और इस प्रैक्टिस ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा दी और थिएटर को देखने का अंदाज भी बदल दिया। फिर इसके साथ जो सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं, अगस्तो बोआल की है, वो भी पेडागोजिकल थ्योरीज हैं,
जो इमेज थिएटर उनका है, फोरम थिएटर है, या जो उनका थिएटर ऑफ ब्रेस्ट की जो फिलोसफी है वो बड़ों के लिए थी। ये पैरेलल काम हो रहा था ड्रामा एजुकेशन का जो स्कूल के अंदर हो रहा था, और थिएटर इन एजुकेशन जो बाहर की एक प्रोफेशनल कंपनी जो है स्कूल के अंदर जाकर के काम करती थी बच्चों के साथ, और रिसर्च जबरदस्त रिसर्च वर्क करती थी इसमें। तो मेरा ये बस नेचर ये बताने का है कि जो ये पेडागोजिकल और जो इसके बेसिक्स हैं, एक चीज समझ जाने से आप किन्हीं भी दिशाओं में काम कर सकते हैं। तो ये एनपी में भी जो बात कही गई है कि क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्यों कही जा रही है? वो इसीलिए कही जा रही है कि हमें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। एक बच्चे के लिए सोचना जरूरी है, तभी वो डिसाइड कर पाएगा या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। अगर वो क्रिएटिविटी नहीं जानेगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये दो चीजें एलिमेंट एनपी में रखा गया, और थिएटर एजुकेशन भी इसी बात को करता है। और बाकी पर्पजेस हैं, फॉर्मेट है, कभी आप वर्कशॉप में काम करेंगे, कभी क्लासरूम में काम करेंगे, कभी परफॉर्मेंस के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन टेक्निक एक तरीके से ही यूज की जाती है। यानी कि जो एक हम मानते हैं टीआई और एक टीआई रिलेटेड वर्क, तो यानी कि उसकी टेक्निक्स को आप कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। मेरा बस एक, तो ये बेसिक हम ट्रेनिंग में कोशिश करते हैं, देते हैं। बाकी एक्टिंग की ट्रेनिंग है और भी बाकी सब चीजें थिएटर की हैं इसमें। यस, थैंक यू। Thank you, Vijay ji. So, taking the same question to you, Abhishek ji, because it's equally relevant to you. What exactly, or how, in fact, what do you think that how can artists help, the teachers embrace the educational importance of creativity, especially because you've been working in the rural parts of the India also. ये एक बिल्कुल ही अलग फिर पर्सपेक्टिव है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ यू हैव बीन डीलिंग विद दिस? मुझे ये लगता है इसमें कि इस सवाल के जवाब के दो हिस्से लगता है। जी। चूंकि आपका सवाल जो है बेसिकली जिस तरह का काम मैंने अभी आपके सामने रखा था अभी, उसके संदर्भ में ज्यादा है, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के संदर्भ में ज्यादा है, तो मैं उसकी भी बात करूंगा और थोड़ी सी इसकी भी बात करूंगा जो विजय जी ने ऑलरेडी की है कि जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं या फ्यूचर टीचर्स हैं, यंग जनरेशन है ना, या प्री सर्विस में जिस तरह की अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में अगर हम ये देखें तो अब तक बीएड के अंदर कोई भाषा टीचर बनेगा या गणित का शिक्षक बनेगा या सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कह रही है कि वहां पर एक विषय उनके पास आर्ट्स भी होगा, तो यानी कि इसी तरह से उनको आर्ट्स चुनने का ऑप्शन भी होगा और उसके बाद वो स्कूलों में आर्ट्स टीचर के रूप में काम कर पाने की क्षमता रखेंगे। ये एक तीसरा हिस्सा है जो नई एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। मैं इस सवाल पे आता हूं कि एक आर्टिस्ट के रूप में या एक थिएटर एंड ड्रामा इन एजुकेशन प्रैक्टिशनर के रूप में आप इन सर्विस टीचर्स के साथ काम करते हुए उन्हें कैसे आप कैपेसिटेट कर सकते हैं या उन्हें उनकी प्रैक्टिसेस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे मैं पहले रखता हूं अपनी बात। तो उनके सर्टेन अजम्पशंस होते हैं, आप उनके कुछ नोशंस होते हैं अपने आसपास को लेकर। तो कई दायरों में थिएटर की प्रैक्टिसेस काम करती हैं। एक तो समाज के बारे में जो पूर्वाग्रह है, सोसाइटी के बारे में जो नोशंस टीचर्स के हैं, थिएटर की प्रैक्टिसेस या थिएटर के अंदर पार्टिसिपेशन या ड्रामा प्रोसेसेस के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेशन अपने जो उनके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनको ब्रेक करने में मदद कर रहा है। और वो प्री कंसीव्ड नोशन कैसे होते हैं? जैसे कि ये तो इस कम्युनिटी से आने वाला बच्चा है, ये सीख ही नहीं सकता, या लड़कियां गणित सीख ही नहीं सकती, गणित जो है विषय वो लड़कियों के लिए नहीं है ना। तो जो कुछ नोशंस है, बहुत पर्सनल नोशंस है टीचर्स के, ड्रामा की प्रोसेसेस उनके बरसों से बने हुए प्री कंसीव्ड नोशंस को तोड़ने में, ब्रेक करने में मददगार होता है। ये पोटेंशियल है ड्रामा की कि जब वो भागीदारी करते हैं, एक समूह के साथ भागीदारी करते हैं, तो जो पहले से उनका माइंड बना हुआ है, किसी के बारे में कोई धारणा बनी हुई है, आप देखेंगे कि उस प्रोसेस में
भागीदारी करते करते, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते करते वो अपनी पोजीशंस को छोड़ने लगते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने लगते हैं, दूसरों के नजरिए से देखने लगते हैं। हम ड्रामा में कहते हैं कि ड्रामा ये अपॉर्चुनिटी देता है किसी पार्टिसिपेंट को कि वो दूसरे के जूते में अपना पैर रख के देखे। तो यहां से एक बात निकलती है कि ड्रामा के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो किसी व्यक्ति के अंदर समानुभूति की भावना पैदा कर सकता है। तो टीचर्स के अंदर एक एम्पैथी क्रिएट करने में ड्रामा बहुत मददगार है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, कि हर एक फैक्ट को देखने के लिए अनेक नजरिए हो सकते हैं और वो नजरिए आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रडिक्शन से फिर एक नया प्रीमाइस गढ़ा जाता है। ये ड्रामा के अंदर ये पोटेंशियल है कि कैसे डायलॉग जनरेट किया जाए और डायलॉग जनरेट करने के बाद किसी एक प्रीमाइस को गढ़ा जाए। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में मददगार है। तो टीचर के अंदर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो सेंस है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का सेंस पैदा करने में ड्रामा एक बहुत मददगार टूल हो सकता है। ये मैं बहुत उनके पर्सनल और अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहा हूं। अभी मैं फिलहाल ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो मेंटल ऑफ द एक्सपर्ट या इमेज थिएटर या कोई इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक्स को कैसे समझे और अप्लाई करे अपने सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। मैं अभी बहुत पर्सनल और अफेक्टिव साइड में बात कर रहा हूं कि टीचर्स को ये प्रोसेसेस कैसे अफेक्ट करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि एम्पैथी, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आ सकती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक सेंस उनके अंदर आता है, प्री कंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करता है ड्रामा का प्रोसेस और वो बदलने की तरफ जाते हैं और उनकी कुछ धारणाएं होती हैं। तो ये बहुत पर्सनल साइड है। दूसरा, हम ये देखें कि ड्रामा की नेसेसरी कंडीशन है डायलॉग, और हम ये देखें कि एक डेमोक्रेटिक सिटीजन जो होता है, डेमोक्रेटिक सिटीजन को डायलॉग में विश्वास करने वाला होना चाहिए और ये एम्स ऑफ एजुकेशन भी कहता है कि डायलॉग होना चाहिए। ड्रामा की ये नेसेसरी कंडीशन है। तो इसमें बिना डायलॉग के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो टीचर्स के अंदर डायलॉग में विश्वास लाना, संवाद के अंदर विश्वास लाना, जो पेडागोजी डायडेक्टिक है हमेशा से कि उपदेश देगा कोई आकर और सिर्फ सुनने वाला होगा, उपदेश देने वाले के पास पूरा ज्ञान है और जो सामने बैठा हुआ है वो एक खाली बर्तन है, उसके अंदर ज्ञान भर देना है, आपस में कोई डायलॉग नहीं होगा। तो ड्रामा के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हुए टीचर्स को ये अंदाजा होता है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक रेसिप्रोकल वर्क है, एक म्यूचुअल वर्क है जो डायलॉग बुनियाद पे टिका हुआ है। तो ये डायलॉग जनरेट करने का एक कैपेसिटी ड्रामा पैदा करता है टीचर्स के अंदर। दूसरे एस्पेक्ट जी, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं बस बोलना चाह रहा था कि आपने जो ये बात कही है, इससे साफ दिख रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे कितनी चेंजेस आएंगी ऑटोमेटिकली या फिर आई होंगी ऑलरेडी, जहां पर टीचर एक आधा घंटा 40 मिनट का लेक्चर देने के बजाय जब पूछताछ शुरू कर देता है या एक स्टूडेंट के साथ में, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो स्टूडेंट के अंदर भी बढ़ता है, वो आई थिंक भूतपूर्व है। और ये बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट ऑफ थिएटर हम कह सकते हैं इन द टीचर्स। मैं बहुत जल्दी से एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल हमारे सामने है टीचर्स के साथ। जिन टीचर्स के साथ हम काम करते हैं तो वो बहुत सख्त नोशन के साथ आते हैं, जिनका बिलीव इस तरह का है कि डंडे के बिना ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता, पिटाई के बिना ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं और वो पिटाई को एक पेडागोजिकल टूल मानते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पिटाई एक पेडागोजिकल टूल है, ये अर्लियर अंडरस्टैंडिंग है और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। इस नोशन से जब टीचर आते हैं और आपकी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं और समथिंग चेंजेस इनसाइड देम, और उनके क्लासरूम को जब हम जाके ऑब्जर्व करते हैं तो अब ये देखते हैं कि उन्होंने कुर्सी छोड़ी है, डंडा छोड़ा है और अब बच्चों के साथ वो एक सर्किल बना के बैठते हैं और सर्किल के अंदर बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अब ईवीएस में ड्रामा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, भाषा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन अगर वो इतना भी कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को छोड़ रहे हैं, छोड़कर और बच्चों के एक सर्किल में बैठना जिन्होंने शुरू किया है, तो एक मेजर शिफ्ट के तौर पर हम इसको देखते हैं।
अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो विज्ञान कैसे पढ़ा देंगे और गणित कैसे पढ़ा देंगे और ईवीएस कैसे पढ़ा देंगे, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ा देंगे। अगर टीचर अपनी पोजीशन छोड़ के बच्चों के साथ सर्किल में ही बैठता है तो ये एक मेजर शिफ्ट है और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और ये ड्रामा की वजह से पॉसिबल हुआ है, होते हुए हमने देखा भी। Yeah, exactly. Absolutely. Yeah. This whole thing about how the Indian system is all the time talking about, learning by the rote. Right. Academia, that doesn't work with, what you do is you learn your dialogues, and then what you do with the dialogues is something else. So you see, the critical faculty will come in any case, if you're doing, bringing in theater in education in any way. That's a wonderful sort of a thing. In any case, I wish people would recognize that. Correct, absolutely. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नोशन, ट्रेडिशनल नोशन ये आता है कि भय भी न होए न प्रीत, और उस दार्शनिक धारणा के साथ टीचर काम करते हैं, तो वो भय का निर्माण करते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस है, और इन कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में टीचर्स को कोई रीजनेबल टूल नहीं मिलता है, और ड्रामा उनको वो रीजनेबल टूल प्रोवाइड करता है। मैं और एक I just wanted to add to what विजय जी had said. उन्होंने वो रसा थ्योरी के बारे में बात किया था. So just to add to the higher education context, जो मैं बार जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड शेकनर हैं और फिलिप जरीली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर. दीज आर टू मेजर theater critics and practitioners. And Richard, for example, he does these wonderful workshop, highly in demand workshop, which is called Rasa Boxes. Okay, and India में इसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है. So that's the irony of the whole situation. हमारी चीज दूसरे लोग यूज करते हैं और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है. Say for example, इस बार पहली बार हमारे लिटरेचर कोर्स में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जैसे हम लोग हमेशा से एरिस्टोटल के पोएटिक्स को पढ़ते थे, इस बार बिकॉज ऑफ these changes that are coming with the NEP, and I'm happy with this, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नाट्य शास्त्र के काफी सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है मॉडल सिलेबस. तो ये जरूरी था. जी मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि वो रिचर्ड शेकनर ने तो थिएटर प्रैक्टिसेस, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एक्टिंग के ऊपर इस पे रसा थ्योरी पे काम किया और रसा बॉक्स बनाया. सवाल ये है ना कि रसा बॉक्स और रसा थ्योरी या रसा का जो भी हमारे जो कंटेंट हैं जो इसके, वो एजुकेशन में कैसे यूज होंगे. जो हम बात थिएटर एजुकेशन या ड्रामा एजुकेशन को जब हम स्कूल में जोड़ करके देखते हैं तो वो स्कूल में कैसे जुड़ेंगे. सवाल ये, वो तो सेपरेट है ही है और उसकी प्रैक्टिसेस तो बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोग करते भी हैं, लेकिन वो कैसे जुड़ेंगे, इसके ऊपर ज्यादा काम होना जरूरी है. और वो हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. स्टूडेंट को थोड़ा सा बस उसको कहते हैं कि बीजारोपण, जिसको कहते हैं सीडिंग का काम, कि भाई ये है तरीका, इसके थ्रू जा सकते हो आगे, इसको भी इंक्लूड करो अपने काम में, क्योंकि दिस इज अपनी चीज है, हमारी चीज है. हाँ, इसमें दो तरह की चीजें मुझे लगती हैं, जैसा जो डिस्कशन से निकल कर आ रहा है. एक तो ये निकल कर आता है कि एक तो नॉलेज है, उसको ट्रेडिशनली अंडरस्टैंड करना, रसा थ्योरी को रसा थ्योरी की तरह अंडरस्टैंड करना, और दूसरा एक होता है इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच. इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो रसा थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए आप डेवलपमेंटल और लर्निंग के एरियाज को कैसे करते हैं और उसका पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस कैसे निकालते हैं, पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस कैसे. तो ये मुझे इस तरह से समझ में आती हैं चीजें. तो यहीं आके फंस जाती है बातें कि जब ये एक्सपेक्ट किया जाता है थिएटर ट्रेनर से और हम टीचर के पास जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें एक्टिंग सिखाएंगे, स्टेज क्राफ्ट सिखाएंगे और बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, जबकि एक ड्रामा इन एजुकेशन प्रैक्टिशनर बहुत इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच के साथ काम कर रहा होता है. उस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच में इंडियन टेक्निक्स भी हो सकती हैं, वेस्टर्न टेक्निक्स भी हो सकती हैं जो किसी एक सिस्टम के अंदर इवॉल्व होकर आई हैं. फॉर एग्जांपल प्रोसेस ड्रामा है,
या इंडिया में अगर हम बात करें रसा थ्योरी है, तो ये सारे अर्लियर सिस्टम्स हैं। अब उस अर्लियर सिस्टम्स पे आप उसको पेडागोजिकली कैसे यूज करते हो, किस पर्पस के लिए यूज करते हो, ये एक अपने आप में क्रिएटिव टीचर की जितना क्रिएटिव टीचर होगा, क्योंकि कोई भी डोमेन जो है ना हमेशा इवॉल्विंग है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस जावा में जो हो गया वो अभी अब उसके बाद ऐसा नहीं होगा, या थिएटर ऑफ द ऑपरेशन में कुछ हो गया तो वो अब उसके बाद फुल स्टॉप लग चुका है, ये अंतिम सत्य है, या रसा थोड़ी अंतिम सत्य है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, और पर्पस भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम डायनेमिक है, ये पूरी सोसाइटी डायनेमिक है, इसमें रहने वाले लोग डायनेमिक हैं, वो टेक्निक्स डायनेमिक हैं, और इंसान बेसिकली क्रिएटिव है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी से बदलता रहेगा। सवाल तो और भी हैं, कई सारे हैं, पर मैं चाहता तो और भी सारे सवाल करूं, पर समय हमने काफी समय लिया है। पर इतने समय में इतना जरूर हुआ है कि एक धारणा जो है, जो अभी तुरंत अभिषेक जी ने कहा है, वो तो थोड़ी बहुत बदली है कि जहां पर टीचर्स का सवाल है, इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग द टीचर्स हाउ टू एक्ट, बट ट्रेनिंग द टीचर्स how to just teach in a better way. And for students, जो विजय जी ने कहा है कि वो बीज आरोपण जो करना है, थिएटर में भी हमने यही सीखा है कि ये एक करत विद्या है, and so goes for students as well. All they're not wanting you to teach everything, they're just wanting you to talk about it so that they can opinionate, and that's what I think theater in education does. And with that takeaway, I would thank Vijay ji, Asha ji, Abhishek ji. Samta ji का इलेक्ट्रिसिटी इश्यू हो गया, इसलिए वो पहले जाना पड़ा उनको, पर thank you so much for your time. This was highly informative, and I am sure this discussion will be useful for many others who are aspirants, who want to teach theater, and also the students. क्या एक बात ऐड कर सकते हैं श्रीनिवास, एक बात ऐड कर सकते हैं? जस्ट मैं डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक डेटा है, पॉलिसी अपनी जगह है, वो पॉलिसी एक दार्शनिक दस्तावेज है, लेकिन इस देश में 15-16 की गिनती के हिसाब से 16 लाख स्कूल हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूल शामिल हैं, और हर एक स्कूल में एक ड्रामा टीचर चाहिए इस देश को, तो 15 लाख ड्रामा टीचर चाहिए। बस मैं इतना सा डेटा आपको नहीं, इसमें तो 9 से 10 तक दो, मतलब एक टीचर हो गया, और बाकी नीचे लेवल पे एक, यानी कि 2, यानी कि डाटा डबल हो जाएगा। हाँ, और फिर उनके टीचर एजुकेटर भी चाहिए जो बीएड कॉलेजेस में चाहिए। हाँ, वो लगभग 30,000 बीएड कॉलेजेस जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए। यही तो मुश्किल है, सोचे अगर और ऊपर जाए तो ये सरकार के साथ मुश्किल है कि ये माइंडसेट टीचर्स का कैसे, जो टेक्स्ट बुक टीचिंग है उसका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे, और एजुकेटर कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बिग क्वेश्चन है ग्रास रूट लेवल का। बहुत बड़ा सवाल। फाइनेंस तो आपने बताया, आशा जी ने हो जाएगा, हो सकता है, वो फाइनेंस कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो ट्रेनिंग का काम है ये बहुत मुश्किल काम है, माइंडसेट बदलने का काम है, जो अभिषेक जी भी कह रहे हैं। कम से कम चलो ड्रामा नहीं यूज करके कम से कम माइंडसेट तो चेंज कर ले कि हमें क्लासरूम में कैसे जाना है, वो ही कर ले तो भी बहुत है। थैंक यू हमारे थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।